Welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Wahur. Now student, in last video lecture we have discussed related to alcohol, phenol and ether. Okay, what is alcohol, what is phenol, what is ether, and in brief the classification of alcohol, phenol and ether. These three parts we have discussed in my first video lecture or in my last video lecture related to our topic alcohol, phenol and ether. Now generally alcohol means we can say aliphatic hydroxyl containing compounds. एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्किल ग्रुप को क्या अटैच रहेगा OH. इफ दैट OH अटैच टू एरोमेटिक रिंग like a benzene, that is called as a phenol, and oxygen, both side of oxygen atom, if same or different alkyl or aryl groups are attached, that is called as ether. ये सब पार्ट अपने स्टडी किए थे इन लास्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर. नाउ स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू डिस्कस नॉमेनक्लेचर, हाउ टू राइट द name of alcohol, phenol and ether. Nomenclature of alcohol, phenol and ether. Now let me discuss one point. To write the name of alcohol, phenol and ether, first we will start nomenclature of alcohol. पहले अपन स्टार्ट करेंगे nomenclature of alcohol. Okay, now there are three ways by which we can write the name of alcohol. Now very first part, that is here trivial name, general name, or it is called as common system. Okay, general name, trivial name, or it is called as a common system to write the name of given alcohol. Now second system, that is carbinol system. Second system is given, that is known as carbinol system, and third one, that is related to IUPAC. Now these are the three methods, system by which we can write the name of alcohol. पहला सिस्टम कौन सा है? कॉमन सिस्टम. सेकंड वन carbinol, and third one is your IUPAC. Now amongst these three, first we will try to start common system. देखो student, now in this video lecture I will try to cover all examples including your board, state board as well as NCERT textbook. ओके मैंने कोशिश किया हूँ कि इसमें जो एग्जाम्पल्स है वो स्टेट बोर्ड के भी कवर हो जाना, प्लस एनसीईआरटी के आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके भी, एंड सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन बुक्स. पूरे कोई एग्जाम्पल्स आई हैव ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो लेक्चर. लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो लेक्चर फ्रॉम कॉमन सिस्टम ऑफ अल्कोहल. और एकदम सिंपल पैटर्न है. अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम या जनरल सिस्टम या ट्रैवल नेम, हाउ टू राइट द नेम ऑफ अल्कोहल. सो द नेम ऑफ अल्कोहल अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम इज रिटर्न बाय एडिंग द वर्ड अल्कोहल इन अल्किल ग्रुप. मतलब अगर मैं जनरल वे में बात करूंगा तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप. वाइल राइटिंग द कॉमन सिस्टम पहले अपन किसका नेम लिखेंगे? अल्किल ग्रुप. देन एड द वर्ड अल्कोहल, और उसके बाद मैं वर्ड ऐड करूंगा अल्कोहल. दिस इज द कॉमन सिस्टम. First write the name of alkyl group, then add the word alcohol. So it is written as alkyl alcohol. It is written as alkyl alcohol. Okay, so its name is written as alkyl alcohol. मतलब पहले मैं किसका नेम लिखूंगा? अल्किल ग्रुप का, और उसके आगे वर्ड ऐड कर दूंगा अल्कोहल. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन आई एम राइटिंग हियर CH3 सिंगल बॉन्ड OH. I have written here CH3 single bond OH. Now ये OH इंडिकेट करेंगे अल्कोहल. अब CH3 एक कार्बन है, तो एक कार्बन से कौन सा अल्किल ग्रुप आता है आपका? मिथाइल. कौन सा अल्किल ग्रुप आता है यहाँ पर? मिथाइल. सो इट्स नेम इज रिटर्न एज मिथाइल अल्कोहल. क्या नेम आ जाएगा गिवन कंपाउंड का? इट इज कॉल्ड एज मैथिल या मिथाइल अल्कोहल. सो दिस इज अ फर्स्ट रूल इन केस ऑफ कॉमन सिस्टम. तो क्या लिखेंगे आप लोग कॉमन सिस्टम में? अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम द अल्कोहल आर नेम
First, writing the name of alkyl group followed by the word alcohol. Now, second rule. In case of higher alcohol, अगर एक से ज़्यादा उसमें कार्बन रहे 2, 3, 4, 5 ब्रांचिंग वगैरह उसमें रहा, so in case of higher alcohol the prefix used आर, अब मैं वहां पर प्रीफिक्स मतलब बिफोर द नेम ऑफ अल्कोहल, मतलब यहां मैथिल अल्कोहल दिया हुआ है, इससे पहले मैं जो भी वर्ड यूज करूंगा दैट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स. द प्रीफिक्स यूज आर, यहां प्रीफिक्स यूज करते हैं एन, मीनिंग वन, क्लियर करूंगा मैं, एन, सेक, आइसो, नियो, टर्शियरी. द प्रीफिक्स यूज आर, कौन से प्रीफिक्स यूज करूंगा मैं, एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन. सेक वर्ड आता सेकेंडरी से, OH ये जो OH रहेगा वो सेकेंडरी कार्बन को अटैच रहेगा. आइसो का मतलब रहता मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3 अटैच टू कार्बन नंबर 2 इन अ कार्बन चेन, मतलब ऐसी कार्बन चेन जिसके कार्बन नंबर 2 पर क्या अटैच रहेगा, मिथाइल. जैसे मैंने यहां लिखा CH3 CH2 फॉर एग्जाम्पल X, और यहां अटैच किया मैंने CH3. ना ये आपकी एक कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन के सेकेंड कार्बन पर क्या अटैच्ड है, CH3. सो द प्रीफिक्स यूज्ड आर, कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे अपन, आइसो. देन काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5. कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5. नाउ 5 कार्बन मीन्स पेंटेन और ANE is replaced by YL, तो इट इज कॉल्ड एज आइसोपेंटिल. और ये X का यहाँ आगे नेम लिखो, अगर OH अटैच रहा तो अल्कोहल, Cl अटैच रहा क्लोराइड. सो दिस इज द मीन आइसो याद रहेगा आप लोगों को, CH3 अटैच टू कार्बन नंबर 2 इन अ कार्बन चेन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज गिवन नियो. व्हाट इज द मीन नियो. अब अपन नियो किसको बोलेंगे पता है, 2 मैथिल ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 2. कार्बन नंबर 2 को कितने अल्किल मिथाइल ग्रुप अटैच रहेंगे, 2, एक अप है और एक डाउन है. दिस इज योर कार्बन चेन. ये आपकी कार्बन चेन है, इसमें 2 अल्किल ग्रुप अटैच्ड है. 1 मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर अबव, सेकेंड मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर बिलो. दिस इज कॉल्ड एज नियो. ये डिफरेंस है आइसो और नियो में. अब नियो प्रीफिक्स जब यूज करेंगे एट दैट मोमेंट आल्सो काउंट द टोटल कार्बन, पूरे कार्बन काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6. नाउ 6 कार्बन मीन्स हेक्सिल. सो द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नियो हेक्सिल. और उसके बाद जो यहाँ फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, राइट इट्स नेम. अगर OH is attached, that is alcohol, Cl chloride, Br bromide. Now, so are you getting my concept? What is the prefix used in common system? N क्या इंडिकेट करेगा, नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन रहता है. सेक कहां से आया, सेकेंडरी, OH अटैच टू सेकेंडरी कार्बन. आइसो मतलब 1 मिथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 2 इन अ कार्बन चेन. नियो का मीनिंग क्या रहेगा, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू कार्बन नंबर 2 इन अ कार्बन चेन. एंड टर्ट, TERT, टर्ट का मतलब रहता फंक्शनल ग्रुप अटैच टू टर्शियरी कार्बन. फंक्शनल ग्रुप कहाँ अटैच रहेगा, टर्शियरी कार्बन. मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हूं व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन एंड व्हाट इज टर्शियरी कार्बन. व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, अ कार्बन टू विच अनदर 1 कार्बन इज अटैच्ड, that is called as primary carbon. What is secondary carbon, a carbon to which another 2 carbon atoms are attached. ऐसा कार्बन जिसको 2 कार्बन एटम अटैच रहेंगे, that carbon is called as secondary. एग्जाम्पल में मैं each and every point कवर करूंगा. And what is tertiary carbon, a carbon to which 3 carbon atoms are attached. ऐसा कार्बन जिसको कितने कार्बन एटम अटैच रहेंगे, 3, and that is called as your tertiary carbon. So these are the rules to write common name of alcohol. Let's start one by one the example of common system of alcohol. So to be frank, टेल मी वन थिंग स्टूडेंट, जल्दी जल्दी मुझे बोलो कॉमन सिस्टम के हिसाब से कैसा नेम लिखेंगे अल्कोहल का. फर्स्ट राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप और उसके आगे वर्ड अटैच कर देने का अल्कोहल. 1 कार्बन रहा तो मिथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन
रहा तो इथाइल 3 कार्बन, प्रोपाइल 4 कार्बन, ब्यूटाइल 5 कार्बन, पेंटाइल 6 कार्बन, हेक्साइल, that list you know very well. And which prefix are used in common system? Small n, that is normal chain, SEC sec, secondary, TERT tert, tertiary, iso, neo. These prefix are used in case of common system. Now let's begin one by one the example of common system of alcohol. अब मैं start करता हूँ first common system, that is CH3OH. पहला example we have written here, that is CH3 single bond OH. Definitely this example is the example of alcohol. काय का एग्जाम्पल है ये? अल्कोहल, क्योंकि उसमें OH है. कितने कार्बन है? 1 कार्बन मीन्स अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल. सो द नेम ऑफ दिस अल्कोहल इज, क्या आएगा ये अल्कोहल का नेम? दिस अल्कोहल इज कॉल्ड एज मिथाइल अल्कोहल. अल्किल ग्रुप इज मिथाइल एंड अल्कोहल आगे उसके ऐड कर दो. नाउ सेकंड एग्जांपल, सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. नाउ दिस एग्जांपल इज गिवन टू यू. CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH. अब ये OH इंडिकेट करेगा अल्कोहल. OH इंडिकेट क्या करेगा? अल्कोहल. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 2. नाउ 2 कार्बन मीन्स आवर alkyl group is ethyl. 2 carbon means our alkyl group is ethyl followed by the word alcohol. So it is called as, क्या बोलेंगे अपन इसको? ethyl alcohol. Now next one, third example. Suppose CH3 CH2 single bond OH. Just count the number of carbon atom. Student, carbon atoms count करो जिसको OH attached है. 1 2 3. कितने कार्बन हो गए? 3. सो हियर मोर देन 2 कार्बन एटम्स आर देयर. जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स रहते अपन प्रीफिक्स यूज करते. अब मेरे पास में कौन कौन से प्रीफिक्स है? अपने पास में प्रीफिक्स है एन, सेक, आइसो, ओके, नियो, टर्शियरी. नाउ दिस आर द प्रीफिक्स, और ये प्रीफिक्स अपन यूज करेंगे. नाउ दिस चेन इज योर नॉर्मल स्ट्रेट चेन, कहीं भी ब्रांचिंग है नहीं, एक स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है, इसलिए मैं यहाँ प्रीफिक्स यूज करूंगा एन. क्या प्रीफिक्स यूज करूंगा मैं? एन. देन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3. 3 कार्बन एटम मीन्स द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप इज प्रोपाइल. नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप इज प्रोपाइल. सो इट इज कॉल्ड एज एन प्रोपिल, और उसके बाद वर्ड लिखो अल्कोहल. एन प्रोपिल एंड फाइनली ये क्या हो गया? अल्कोहल. सो दिस इज कॉल्ड एज एन प्रोपिल अल्कोहल. क्या नेम है ये कंपाउंड का? एन. वाई एन इज यूज्ड? क्यों मैं एन यूज कर रहा हूं इधर? बिकॉज इट इज द नॉर्मल चेन. ये नॉर्मल चेन है. नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 4. सपोज आई एम राइटिंग CH3, ओके, CH3, then CH2 सिंगल बॉन्ड OH. अब ये OH रहा तो अल्कोहल. अब कितने कार्बन आइटम्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4. कितने कार्बन आइटम्स है? 4. पहले चेक करो ये नॉर्मल चेन है या ब्रांच चेन है. नाउ इट इज द नॉर्मल चेन, सो द प्रीफिक्स यूज्ड इज N. टोटल कार्बन है 4. अल्किल ग्रुप इज ब्यूटाइल या ब्यूटिल, वॉट एवर इट इज, एंड OH रहा तो अल्कोहल. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, क्या नेम आएगा इसका? एन ब्यूटिल अल्कोहल. वाई एन? normal chain. Why butyl? 4 carbon atoms are there. And why alcohol? Because OH functional group is there. Now next one, suppose I am writing CH3 CH3 single bond CH2 single bond OH. Now this example is given to you. Our suffix alkyl group के बाद जो आएगा that is suffix. ये अल्कोहल है. नाउ वेदर इट इज नॉर्मल चेन, मतलब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इट इज एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेंज. अगर ब्रांच चेन रहा, हायर अल्किल ग्रुप अटैच रहा OH को, देन वी विल यूज प्रीफिक्स एन, सेक, आइसो, नियो, टर्शियरी. अब मैं यहां पर प्रीफिक्स एन यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये नॉर्मल चेन नहीं है.
So we will use either sec, iso, neo या tertiary. When you will observe this is my carbon chain और ये carbon chain में कार्बन नंबर 2 जो है मेरा CH उसको क्या अटैच्ड है CH3. अगर कार्बन नंबर 2 पर CH3 अटैच्ड है so the prefix use is iso. Okay, count total carbon 1 2 3 4. Now 4 carbon means butyl. 4 carbon means butyl. So it is isobutyl. OH means alcohol. So the name of this compound is, क्या नेम आएगा ये कंपाउंड का? isobutyl alcohol. Why butyl? क्योंकि टोटल 4 कार्बन है 1 2 3 4. Why iso? क्यों मैं यहाँ iso यूज कर रहा हूँ? Because CH3 attached to carbon number 2 in a carbon chain. Now next one. Suppose I am writing CH3, CH, CH3, then CH2, CH2, single bond, OH. Now this example is given to you. Total how many carbon atoms are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon means our alkyl group is pentyl. OH है, so write here alcohol. So it is your pentyl alcohol. Only we have to write here the name of prefix. मुझे इसे prefix लिखना है. Now here prefix used is, which prefix we will use here? Now this one is your carbon number 2 to which one methyl group is attached. So the prefix used is iso and the name of this compound is isopentyl alcohol. इसको अपन क्या बोलेंगे? isopentyl alcohol. Now these are the some example. IUPAC कॉमन सिस्टम ऑफ अल्कोहल. ये सब काय के एग्जाम्पल हो गए कॉमन सिस्टम ऑफ अल्कोहल. नाउ नेक्स्ट वन. सपोज आई एम सेइंग CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH then CH2 single bond CH3. Okay, now this carbon chain is given to you. CH3 CH CH2 then CH3 and above there again OH is attached. When you will see this carbon chain is also normal chain, मतलब straight chain है, branching कहीं भी नहीं है. But here OH attached to carbon. अब ये जो कार्बन है जिसको OH attached है, the carbon to which OH is attached, ये कार्बन है secondary carbon. And why we call it secondary carbon? क्यों अपन इसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे? क्योंकि ये कार्बन को 2 कार्बन एटम अटैच्ड है. राइट में CH2 है और लेफ्ट में CH3 है. ये कार्बन को कितने कार्बन एटम अटैच्ड है? 2. राइट में CH2 एंड लेफ्ट में CH3. सो दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन. सो हियर द सफिक्स यूज इज सेकेंडरी का सेक. सेकेंडरी का क्या आएगा? सेक. Count total carbon atoms 1 2 3 4. Now 4 carbon means alkyl group is butyl and OH है, that's why it is called as alcohol. So the name of this compound is, क्या name हो जाएगा इसका? sec butyl alcohol. What is the name of this compound? sec butyl alcohol. Now student, next one. Suppose I have written here this structure. Bond line structure is given to you. How to write the name of such structure? ये स्ट्रक्चर में क्या करने का? फर्स्ट आइडेंटिफाई हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर. पहले उसमें मैं चेक करूंगा कार्बन एटम्स कितने हैं. इसका मेथड क्या रहता है पता है? ईच डॉट इज कंसिडर एज 1 कार्बन. अब ईच डॉट का मतलब क्या रहता है? इधर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6. सो दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज अ कार्बन एटम. तो यहाँ कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ 6 कार्बन मीन्स हेक्सिल. 6 कार्बन मतलब ये क्या हो गया? हेक्सिल. ओके, सपोज यहाँ OH है इसलिए अल्कोहल. तो दिस वन इज योर हेक्सिल अल्कोहल. अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन का नेचर क्या आएगा? मतलब दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन. ये कार्बन का नेचर क्या आएगा? अब देखो ये कार्बन को ऊपर OH अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड रहने दो. नाउ राइट में एक कार्बन है. ओके, राइट में एक कार्बन है, लेफ्ट में एक कार्बन है. सो दिस अल्कोहल इज क्या हो गया आपका? सेक हेक्सिल अल्कोहल. अगर ये आप लोग स्ट्रक्चर
नॉर्मल वे में लिखेंगे तो टर्मिनल डॉट्स आर कंसिडर एज CH3, जो टर्मिनल डॉट्स रहते हैं उनको क्या कंसिडर करते हैं, CH3। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, CH3 हो गया, देन CH और ये CH को यहाँ OH अटैच्ड है, हो गया CHOH, देन दिस CH2, this CH2, this CH2 and this final one is your CH3. Both structure are same, CH3, CHOH, CH2, CH2, CH2 and finally CH3. Both structures are same. That is the example of sec hexyl alcohol. ये दोनों भी काय के example है, sec alkyl hexyl alcohol. I hope you will getting this point. आपको समझ में आ रहा है, okay? Note down this all examples in your notebook. Now next one. Suppose I am writing here example number 9, CH3, CH3 single bond OH. Now this example is given to you. अब ये ऐसे अगर एग्जाम्पल दिया और मुझे कॉमन नेम लिखना है तो आई नो वाइल राइटिंग द कॉमन नेम द प्रीफिक्स यूज आर, कौन से प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं अपन, एन, सेक, आइसो, नियो एंड टर्शियरी, ये अपन प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या करने का, जो भी कार्बन को OH अटैच्ड है, concentrate on my words, the carbon to which OH is attached, वो कार्बन का नेचर फाइंड आउट करने का, मीन्स वेदर दैट कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन। अब जैसे यहां पर OH अटैच्ड है ये कार्बन को, सो फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस कार्बन, चेक करो ना ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्शियरी कार्बन है, वो कैसा चेक करेंगे अपन, ये कार्बन को कितने कार्बन एटम अटैच्ड है। When you will observe to this carbon, another 3 carbon atoms are attached. The carbon bearing OH, ऐसा कार्बन जिसको OH अटैच्ड है, वो कार्बन पर कितने कार्बन एटम अटैच्ड है, 3. So the nature of this carbon, स्टूडेंट जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, the nature of this carbon is tertiary carbon and we will write here tert, TERT. तो वो tert क्या इंडिकेट करेगा, टर्शियरी। काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4, पूरे कार्बन काउंट करने के ना 4 कार्बन मीन्स दिस बिकम ब्यूटिल, OH है इसलिए अल्कोहल, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये काय का एग्जाम्पल हो गया, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल. Why it is tertiary? Because OH bearing carbon, the carbon to which OH is attached, the nature of that carbon is tertiary, कि उसको 3 कार्बन आइटम अटैच्ड है. सो स्टूडेंट, दिस इज अ रूल्स, कॉमन सिस्टम ऑफ अल्कोहल. तो अपने प्लेन वे में अपन क्या करेंगे, पहले कार्बन काउंट करने का, एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप. मैं अल्किल ग्रुप का नेम लिखूंगा और वो अल्किल ग्रुप के आगे अटैच करेंगे अपन OH, एंड दैट इज कॉल्ड एज अल्किल अल्कोहल. एंड यूज द प्रीफिक्स यूज आर N, sec, iso, neo and tertiary. So this is the example of your primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, N, iso. एक एग्जाम्पल रह गया है नियो का. होप यू हैव रिटन ऑल दिस पॉइंट. पॉज योर वीडियो पॉज करो और ये सब एग्जाम्पल्स कवर करो. मैं ये पार्ट रफ करता हूँ कि मुझे 1-2 एग्जाम्पल नियो के लेना है. ओके, नाउ सी नियो अपन किसको बोलेंगे पता है, द कार्बन टू विच 2 मैथिल, कार्बन नंबर 2, द कार्बन चेन in which carbon number 2 methyl groups are attached. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर. See here, suppose I have written here CH3, C, then CH3, CH2 single bond OH. Now this example I have written. मैंने ये एग्जाम्पल लिखा हो. Now here OH attached to CH2. OH attached to CH2. But in carbon chain, अगर आप लोग कार्बन चेन देखेंगे, दिस इज माई कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 2 पर 2 मैथिल ग्रुप अटैच्ड है. कार्बन नंबर 2 पर कितने मैथिल ग्रुप अटैच्ड है, 2. सो द प्रीफिक्स यूज इज, कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे अपन, नियो. देन काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3
4, 5. Now 5 carbon means this become pentyl and OH है, that's why it is called as alcohol. OH है इसलिए ये क्या हो गया आपका alcohol. So the name of this compound is, क्या आएगा name of this compound? Pentyl alcohol. क्या बोलेंगे अपनी कंपाउंड को? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पेंटिल अल्कोहल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाई इट इज नियो? व्हाई इट इज नियो? बिकॉज 2CH3 attached to carbon number 2 in a carbon chain, and that's why the prefix used is neo, and finally such compound are called as neo alkyl alcohol. And why it is pentyl? So total 5 carbon atoms are there. So in this 10 or 11 example, students, I have tried to cover each and every points. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी देखे अपन ने कि जस्ट उसमें जो टर्मिनल डॉट्स रहते हैं उनको कंसिडर करने का CH3 एंड मिडल डॉट्स आर कंसिडर एज आइदर CH या CH2. ओके, वो डॉट्स काउंट करने का, एंड 1 डॉट मीन्स 1 कार्बन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन सिस्टम ऑफ अल्कोहल. होप यू हैव रिटन ऑल दिस पॉइंट. आपका वीडियो पॉज करो एंड नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट. सो दिस इज अ कॉमन सिस्टम टू राइट नेम ऑफ अल्कोहल. ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू बिगिन, दैट इज कार्बिनॉल सिस्टम. देखो स्टूडेंट, नाउ वी विल ट्राई टू स्टार्ट द कार्बिनॉल सिस्टम. नाउ अकॉर्डिंग टू कार्बिनॉल सिस्टम, हाउ टू राइट द नेम ऑफ अल्कोहल. देखो मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं और सेकंड सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज कार्बिनॉल सिस्टम. यस, विच सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टार्ट? कार्बिनॉल सिस्टम टू राइट द नेम ऑफ अल्कोहल. अब देखो इधर जो ये OL है, ऑल, इस पर से आप लोग पहचान गए होंगे कि इट इज अल्कोहल. OL, ऑल, इट इज द सफिक्स ऑफ अल्कोहल. जैसे ENE, इन, अल्कीन का सफिक्स है. YNE, अल्काइन का सफिक्स है. ANE, अल्केन का सफिक्स है. वैसे OL ये किसका सफिक्स है? अल्कोहल का. अब अकॉर्डिंग टू योर रूल्स, फिर अपन अपनी कॉमन भाषा स्टार्ट करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल्स, हाउ टू राइट the name of alcohol by using carbinol system. So according to carbinol system, methyl alcohol, all alcohols are considered as a derivative of methyl alcohol. कार्बिनॉल सिस्टम के हिसाब से जितने भी अल्कोहल है ये सब किसके डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव मतलब वो बने हुए हैं. किससे बने हुए हैं? मिथाइल अल्कोहल से. और in carbinol system, methyl alcohol is called as a carbinol. Means this one, your CH3 single bond OH, ये जो मिथाइल अल्कोहल रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल. Methyl alcohol is called as a carbinol, and all other alcohols are considered as a derivative of carbinol, methyl alcohol. Okay, for example, I am writing here CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH. अब इसका मुझे कार्बिनॉल सिस्टम के हिसाब से नेम लिखने का है. अब इसमें क्या करने का पता है? द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड इज कॉल्ड कार्बिनॉल. द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड, ऐसा कार्बन जिसको OH अटैच्ड है उसको अपन क्या बोलेंगे? कार्बिनॉल. सो according to this system, this structure become carbinol. ये काय का स्ट्रक्चर हो गया? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिनॉल. एंड देन फाइंड आउट द अल्किल ग्रुप. उसके बाद मैं चेक करूंगा कोई अल्किल ग्रुप है क्या, और जो भी रहेगा उसका यहाँ नेम लिख देने का. अब यहाँ पर अगर ये पार्ट को मैं हाइड कर रहा हूँ, दैट इज माई कार्बिनॉल, तो रिमेनिंग पार्ट इज CH3. कितने कार्बन है? 1. सो 1 कार्बन मीन्स मिथाइल. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या नेम आ जाएगा ये स्ट्रक्चर का? मिथाइल कार्बिनॉल. क्या बोलेंगे अपन इसको? मिथाइल कार्बिनॉल. मतलब जो कार्बन को OH अटैच्ड है वो कार्बन को क्या बोलने का? कार्बिनॉल. उसको छुपा देने का और बाद में चेक करने का एनी अल्किल ग्रुप इज अटैच्ड और नॉट. सेकेंड वन, सपोज CH3 CH
OHCH3. Now this structure I have written here, okay, and according to carbinol system we have to write the name of this structure. तो अपन क्या बोलते हैं कि जो भी कार्बन को OH अटैच्ड है दैट इज कार्बिनॉल. तो ये जो कार्बन है ये क्या हो गया मेरा कार्बिनॉल, क्योंकि ये CH को OH अटैच्ड है. उसके बाद में अल्किल ग्रुप चेक करो. इफ मोर देन वन अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड, आपको पता है यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा. अब ये CH मेरा कार्बिनॉल हो गया, CHOH, this become carbinol, so this CH3 act as a substituent. तो दो CH3 है, प्रीफिक्स यूज इज डाई और दोनों भी मिथाइल है. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, क्या आएगा नेम ऑफ ए कंपाउंड, डाई मिथाइल कार्बिनॉल. क्या नेम आएगा वो, डाई मिथाइल कार्बिनॉल. नाउ नेक्स्ट वन, suppose I have written here CH3C, CH3 single bond, CH3 single bond OH. Now what is the common name of this structure? Common name अगर आप लोग देखेंगे so the common name is tertiary butyl alcohol. इसका कॉमन नेम क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल. नाउ दिस टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू CN मतलब कॉमन नेम, CN मतलब कॉमन नेम. नाउ माय क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ tertiary butyl alcohol according to carbinol system? What is the name of tertiary butyl alcohol according to carbinol system? Now according to our rule, the carbon to which OH is attached that is called as carbinol. ऐसा कार्बन जिसको OH attached है that is called as a carbinol, and then we will count the number of alkyl groups. Okay, now this carbon become carbinol. Okay, this carbon become carbinol. Now to this carbon 3 alkyl groups are attached. कितने alkyl group attached है, 3. Both all 3 are the methyl, so prefix use is tri and one carbon means methyl, so the name of this compound is trimethyl carbinol. What is the name of this compound, trimethyl carbinol. Now final example of this session, CH3 CH2 CH3 single bond OH. Write the name of this alcohol according to carbinol pattern. मुझे ये अल्कोहल का नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू कार्बिनॉल सिस्टम. तो अपना रूल क्या है, कार्बन बियरिंग OH मतलब कार्बन जिसको OH अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड एज कार्बिनॉल. तो ये पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा, कार्बिनॉल. उसके बाद मैं चेक करूंगा कि कार्बन बियरिंग OH वो कार्बन को कोई अल्किल ग्रुप अटैच्ड है या नहीं है. तो वेदर दैट अल्किल ग्रुप्स आर सेम और डिफरेंट. अगर सेम अल्किल ग्रुप्स रहा यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा. इफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड अरेंज देम अल्फाबेटिकली. ओके, नाउ हियर CH2 CH3 is attached, मतलब दो कार्बन है, अल्काइल ग्रुप इज योर इथाइल. नाउ हियर one carbon is there, that is your methyl, so the two alkyl group attached to carbinol carbon are different. One is your ethyl, another one is your methyl. E का ethyl का E, methyl का M, arrange them alphabetically. So in alphabetical order we will write this compound ethyl methyl carbinol. We will write this structure ethyl methyl carbinol. So student, this is the method to write the name of alcohol according to carbinol system. वो आपको क्या क्वेश्चन पूछता है पता है, what is the name of tertiary butyl alcohol according to carbinol system? What is the name of sec butyl alcohol? इसका कॉमन नेम अगर आप लोग चेक करेंगे, दिस इज sec butyl alcohol. What is the name of sec butyl alcohol according to carbinol system? सेक ब्यूटिल अल्कोहल का कार्बिनॉल सिस्टम के हिसाब से नेम लिखो. या आपको पूछेगा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ, देखो कॉमन नेम ऑफ डाइमेथिल कार्बिनॉल. डाइमेथिल कार्बिनॉल का कॉमन नेम क्या आएगा. अब अगर ये स्ट्रक्चर को मैं प्रॉपर वे से नॉर्मल वे से ड्रॉ करूंगा, अब अगर ये स्ट्रक्चर को अपन नॉर्मल वे से ड्रॉ करेंगे, सी दिस वन इज योर CH3, ओके, सिंगल बॉन्ड CH, ये OH को मैं ट्विस्ट कर देता हूं. नाउ दिस वन इज योर CH3. बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम. अब अगर आप लोग ये दोनों स्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे, नाउ दिस वन
CH3 CH CH3 OH, both structures are same. Now in both cases the alkyl group is propyl. Which alkyl group is there? Propyl. OH रहा इसलिए alcohol. So the name of this compound is propyl alcohol. But what about the prefix? Now here OH attached to सेकेंडरी. ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया आपका? सेकेंडरी कार्बन. बिकॉज टू दिस कार्बन अनदर 2 कार्बन एटम्स आर अटैच, सो इट इज कॉल्ड एज योर सेक प्रोपिल अल्कोहल. क्या है ये आपका? सेक प्रोपिल अल्कोहल. एंड इन केस ऑफ प्रोपिल, सेक एंड आइसो आर सेम, सो इट्स कॉमन नेम इज आल्सो आइसोप्रोपिल अल्कोहल. ओनली प्रोपिल के केस में, ओनली इन केस ऑफ प्रोपिल सेक एंड आइसो आर सेम, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल अल्कोहल और इट इज कॉल्ड एज सेक प्रोपिल अल्कोहल. तो स्टूडेंट, दिस इज द मेथड टू राइट द कॉमन नेम कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ अल्कोहल. होप यू हैव रिटन ऑल दिस पॉइंट. अब पॉज करो आपका वीडियो एंड राइट ऑल एग्जाम्पल्स. राइट ऑल एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ the third system we are going to discuss, that is IUPAC rules. What is IUPAC rules? Yeah, according to IUPAC, how to write the name of alcohol, that part I am going to discuss. According to IUPAC, how to write the name of अल्कोहल, एक सिंपल पार्ट है वो अपन स्टार्ट करेंगे कि भाई IUPAC के हिसाब से अल्कोहल का नेम कैसा लिखने का है. Okay, now full form of IUPAC everyone knows very well, that is your International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. Now some rules are there. IUPAC के कुछ रूल्स है और वो अपने को फॉलो करना पड़ेंगे टू राइट द नेम ऑफ अल्कोहल. पहला IUPAC का रूल रहता, the alcohol name is written as alkanol. Alcohol name is written as alkanol. मतलब मैं यहाँ क्या करूँगा, the E of alkane is replaced by OL. E of alkane is replaced by OL. Now this one is your alkane, ALKNE. ये मैं E निकालूंगा और वहाँ क्या अटैच करूंगा? सफिक्स OL. So this alkane convert into alkanol. alkane काय में कन्वर्ट हो जाएगा? alkane convert into alkanol. Okay, okay. Now suppose alkene is given, अल्काइन इज गिवन. सेम रूल अपन फॉलो करेंगे. अगर उसने मुझे अल्कीन दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया है उसमें, तो मैं क्या करूंगा? E is replaced by OL, अल्कीनॉल. If triple bond is given, now triple bond में this structure is your alkyne. alkyne का फिर E निकालने का OL अटैच करो, that is called as alkanol. So according to IUPAC system, the name of alcohol in case of alkane, alkene and alkyne is written as by replacing या substituting E of alkane, alkene, alkyne by OL. Okay, now सेकेंड उसका रूल रहता द पोजिशन ऑफ OH. अब अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH. द पोजिशन ऑफ OH इज रिप्रेजेंट बाय प्रॉपर नंबर, लोकेंट या प्रॉपर नंबर. तो मेरा IUPAC क्या बोलता है? ये हर रूल मैं एक एक एग्जाम्पल में करूंगा. स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर फंक्शनल ग्रुप अपीयर्ड फर्स्ट. फंक्शनल ग्रुप शुड गेट अ मिनिमम पॉसिबल नंबर. मतलब मैं जब कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा उसमें मैं वो एंड से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा जहां से OH पहले आता, फंक्शनल ग्रुप पहले आता. ओके, नाउ नेक्स्ट रूल, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट. कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रह रहा है, सो राइट फर्स्ट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अलॉन्ग विद देयर नंबरिंग. ओके, अब ये सब रूल्स मैं 1 by 1 एग्जाम्पल में कवर करूंगा. ओके, नाउ सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. ऐसे अल्कोहल जिसमें क्या पाया जाता है? एक OH ग्रुप. इफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स आर देयर, इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स विच कंटेनिंग मोर देन 1 OH ग्रुप. अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल रहा तो मैं नेम कैसा लिखूंगा?
नाउ इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे 2 OH ग्रुप रहे, 3 OH ग्रुप है, इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल द ई जो अल्केन का ई रहता इट इज रिटेन एज इट इज, मतलब वो मैं रिप्लेस नहीं करूंगा एंड इट इज कॉल्ड एज अल्केन। अब अगर 2 OH ग्रुप रहा तो यूज प्रीफिक्स डाई all, it is called as alkane diol, we will not substitute e। अगर 3 OH ग्रुप रहा it is called as alkane triol, maintain या retain e of alkane। कब मैं e of alkane को सब्सटीट्यूट नहीं करूंगा, जब मेरे पास में एक से ज्यादा OH ग्रुप रहेंगे। अगर 4 OH groups are there, it is called alkane tetraol, the prefix used are di, tri, tetra। तो स्टूडेंट ये तो हो गया था theoretically the rules, IUPAC rules of alcohol। मैं ये पूरे rules रिपीट करता हूँ by taking 10 examples। उसमें अपन साइक्लिक अल्कोहल भी कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? साइक्लिक अल्कोहल। नाउ स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें क्या करने का, कार्बन काउंट करो। नाउ 1 कार्बन मीन्स अल्केन का पहले नाम देखो। अब मुझे पता है 8, 9, 10th में मैंने स्टडी किया हूं, 1 कार्बन रहा तो मीथेन। Yes, if 1 carbon atom is there, this is called as methane। OH रहा तो अल्कोहल, और अल्कोहल का मैं क्या लिखता हूं, OL, ऑल। सो E of alkane is replaced by OL, it is called as methanol। Now next one, suppose CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये OH रहा तो डेफिनेटली इट इज अल्कोहल। काउंट द कार्बन एटम्स, 1, 2 कार्बन रहा तो इथेन। ई निकालने का, ई इज रिप्लेस्ड बाय सफिक्स, अल्कोहल का सफिक्स क्या आता, OL। ई इज रिप्लेस्ड बाय OL, इट इज कॉल्ड एज इथेनॉल। क्या अपन इसको बोलेंगे, इथेनॉल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1, 2, 3। पहले चेक करो वेदर इट इज स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब ये जो अल्कोहल है आपका, नाउ इट इज द स्ट्रेट चेन। नाउ प्रोपेन, 3 कार्बन एटम स्ट्रेट नॉर्मल वे में अटैच्ड है, प्रोपेन। ई इज रिप्लेस्ड बाय OL, इट इज कॉल्ड एज प्रोपेनॉल। एंड जस्ट वी हैव डिस्कस इन कॉमन सिस्टम कि अगर 2 से ज्यादा कार्बन रहे तो मैं आइदर प्रीफिक्स यूज करूंगा। कॉमन सिस्टम में, IUPAC में नंबरिंग स्टार्ट करते हैं अपन। अगर 2 से ज्यादा कार्बन रहे तो अपन क्या स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग। और मेरा सेकेंड रूल क्या रहता पता है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर OH ग्रुप अपीयर्ड फर्स्ट। अब देखो ये कार्बन को OH अटैच्ड है, मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, 1, 2 एंड 3। अब ये मेरी नॉर्मल चेन है, मेरे पास में 2 रूल रहेंगे, यहाँ पर 2 पैटर्न रहेंगे। एक तो मैं नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करूंगा, या वी विल बिगिन्स नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अगर मैंने लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट किया, OH की पोजीशन क्या आ रहा, कार्बन नंबर 3। OH की पोजीशन मतलब OH कौन से कार्बन को अटैच रह रहा है, कार्बन नंबर 3। बट व्हेन वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, जब अपन राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, दिस कार्बन बिकम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ओके, एंड दिस वन इज माय कार्बन नंबर 3। तो फ्रॉम विच एंड शुड वी स्टार्ट द नंबरिंग, क्योंकि पोजीशन मतलब कौन से कार्बन को OH अटैच्ड है वो चेक करो ना। राइट साइड से OH अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1। तो डेफिनेटली आवर नंबरिंग पैटर्न विल बी, क्या रहेंगे अपनी नंबरिंग पैटर्न, फ्रॉम राइट हैंड साइड। ओके, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर फंक्शनल ग्रुप अपीयर्ड फर्स्ट। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। तो दिस इज कॉल्ड एज 1-प्रोपेनॉल। यस, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1-प्रोपेनॉल। या ये कंपाउंड में अपन क्या करेंगे, E इज रिप्लेस्ड बाय 1 and all, so it is called as propan-1-all। ये प्रोपैन क्या इंडिकेट करेगा, 3 कार्बन। ओके, प्रोपैन क्या इंडिकेट करेगा, 3 कार्बन। OL क्या इंडिकेट करेगा, अल्कोहल।
OL क्या इंडिकेट करेगा? OH ग्रुप। और ये जो 1 रहता वो OH की पोजीशन बताता मुझे कि दैट OH अटैच टू कार्बन नंबर 1। नाउ लाइकवाइज सपोज आई एम राइटिंग हियर CH3 CH2 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 OH। नाउ दिस स्ट्रक्चर आई हैव रिटन, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल चेन। ये भी काय के एग्जाम्पल हो गए आपके नॉर्मल चेन की। ओके नाउ इसमें भी आप लोग एक तो राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, दिस कार्बन बिकम कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो OH की पोजीशन क्या रही? अटैच टू कार्बन नंबर 4। बट व्हेन वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, this carbon is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. So from which end should I start the numbering? मैं लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा या राइट से स्टार्ट करूंगा? डेफिनेटली वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। वाई? बिकॉज अगर मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूं तो पोजीशन ऑफ OH मतलब कौन से कार्बन को OH अटैच्ड है? कार्बन नंबर 1 को। Start numbering from that end where functional group appear first. So this end numbering is wrong. Okay, so definitely we will start the numbering from right hand side. Now carbon count karo, 1 2 3 4. Now 4 carbon means this is the example of butane. E is replaced by 1 and all. E is replaced by 1 and all. It is called as butane 1 all. Now next example is given to you, butane 1 all. Next example, suppose I am writing here CH3 CHOH CH2 CH2 CH3. अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिखा। Now it is also the example of normal chain, straight chain, normal chain या straight chain. Now here either we will start numbering from left hand side or we will start numbering from right hand side. अगर मैं left से start कर रहा हूँ numbering, see here this carbon is my carbon number 1, carbon number 2 3 4 and 5. What is the position of functional group? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या आ रहा? इट अटैच टू कार्बन नंबर 2। राइट से स्टार्ट करो नंबरिंग। दिस कार्बन नंबर 1 2 3 4, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर फंक्शनल ग्रुप अपीयर्ड फर्स्ट। तो मैं कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज कॉल्ड एज पेंटेन। ओके, ई पेंटेन का ये जो ई है, नाउ ई ऑफ पेंटेन इज रिप्लेस्ड। ये ई को अपन रिप्लेस करेंगे बाय 2 and OL. Why this 2? ये 2 क्या इंडिकेट करेगा? OH अटैच टू कार्बन नंबर 2। 2 क्या इंडिकेट करेगा? OH अटैच टू कार्बन नंबर 2। पेंट क्या इंडिकेट करेगा? 5 कार्बन एंड OL विल इंडिकेट hydroxyl group is there, alcohol functional group is there. Okay, so this is the method to write the IUPAC nomenclature of given alcohol. Now next example, suppose CH3 CH2 CH3 single bond CH2, okay, single bond CH2 single bond OH. Now this example is given to you and we have to write the IUPAC name of this structure. मुझे इसका IUPAC name लिखना है। पहले चेक करो whether it is straight chain और branch chain। अब स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का डिफरेंस तो आप लोगों को पता है, आपने 11 में स्टडी किया होगा। नाउ डेफिनेटली इट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन अल्केन। ये काय का एग्जांपल है? ब्रांच चेन अल्केन। और जब भी ब्रांच चेन अल्केन देता मुझे तो मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ पैरेंट अल्केन। कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ पैरेंट अल्केन, मतलब ऐसी चेन मैं सिलेक्ट करूंगा। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा उसमें कार्बन रहेंगे और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा। मैं आपको पॉसिबिलिटीज बताता हूं। यहां पर एक चेन ये रह सकती है आपकी, दैट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सेकेंड पॉसिबिलिटीज यहां क्या रहेगा पता है आप लोगों का? यहां से स्टार्ट होगा और वो ऊपर जाएगा। नाउ दिस आर द 2 possibilities, either 1 2 3 4 5
दिस स्ट्रेट चेन विल बी अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस का मतलब रहता है सीधा नहीं, उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिलना। अब जैसे यहां कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4। मेरे पास में दो टाइप के यहां पर चेन पॉसिबल है, एक तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आएगा, या दूसरा मैं राइट से स्टार्ट करके कहां लेके जाऊंगा, टॉप में। अगर मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3 4 तो उसमें कितने कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, 4। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा 1 2 3 4 5, सो विच वन विल बी माई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कौन सी मेरी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन रहेंगी, अ चेन विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ऐसी चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रहेंगे, कार्बन आइटम्स रहेंगे, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा पेरेंट अल्केन। बॉक्स बना लो, वो हो गया आपका पेरेंट अल्केन। मतलब योर पेरेंट अल्केन कंटेनिंग 5 कार्बन, सो दिस बिकम पेंटेन। ई इज रिप्लेस्ड बाय OL एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जो बॉक्स है ये मेरा पेरेंट अल्केन है, तो व्हाट अबाउट दिस CH3? बॉक्स मेरा पेरेंट अल्केन हो गया, तो बॉक्स के बाहर जो CH3 आ रहा, दैट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या अल्काइल ग्रुप। सिलेक्ट longest continuous carbon chain containing functional group as a parent alkane. Now second rule रहता start numbering from that end where functional group appeared first. इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, we will start numbering from, कहां से आप लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि OH पहले आ रहा है। ओके, सो ये हो गया आपका पेंटेन 1 ऑल। ये क्या हो गया आप लोगों का, पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन मतलब मेरे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में 5 कार्बन है, 1 मतलब OH अटैच्ड है कार्बन नंबर 1 को, और OL मतलब OH। अब मेरे पास में रह गया ये CH3, दैट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या अल्काइल ग्रुप। उसके लिए रूल क्या आता है मालूम है, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अलोंग विद देयर नंबरिंग। जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसका नाम लिखो, और वो कौन से कार्बन नंबर को अटैच्ड है, कौन से नंबर ऑफ कार्बन को अटैच्ड है वो लिखो। अब यहाँ पर माय सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज CH3 मींस मिथाइल, इट अटैच टू कार्बन नंबर 3, सो इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे अपन इसको, 3 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। व्हाट वी विल कॉल इट, 3 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले क्या सिलेक्ट करने का, पेरेंट अल्केन, नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर फंक्शनल ग्रुप अपीयर्ड फर्स्ट, और उसके बाद में अपन क्या बोलेंगे, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज प्रेजेंट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अलोंग विद देयर नंबरिंग। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज आई एम राइटिंग हियर CH3 CH2, ओके हाँ, CH3 CH3 then CH2 OH. Now this example is given to you. पहले चेक करो whether it is straight chain alkane और branch chain alkane. डेफिनेटली ये एग्जाम्पल है ब्रांच चेन अल्केन की, उसमें पेरेंट अल्केन सिलेक्ट करो, मतलब ऐसी चेन सिलेक्ट करो कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन रहना और कुछ तो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप निकलता है आप लोगों का। अगर आप लोग देखेंगे, मैंने अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, ये एक पॉसिबिलिटीज रहेगा मेरा, दिस विल बी माई पेरेंट चेन, या 1 2 3 दोनों वे से मेरा पेरेंट चेन आता है। अब अगर मेरा पेरेंट चेन को मैंने ये बॉक्स बना लिया, सो दिस ग्रुप एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड वेयर फंक्शनल ग्रुप अपीयर फर्स्ट, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। नाउ हियर द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज 1, position of substituent group is 2, so final name of this compound is, क्या आएगा name of compound, 2 methyl propane, E is replaced by 1 and all, so it is called as 2 methyl propane 1 all। क्या बोलेंगे अपन इसको, 2 methyl propane 1 all। Likewise we will write the name of such compounds according to IUPAC nomenclature. So pause your video and write all example. I am taking 3-4 examples related to your IUPAC, and then we will come to the cyclic structure of alcohol. That will be my last today's point. Today's lecture का मेरा आखिरी point रहेगा how to write the name of cyclic alcohol.
Okay, and now in next video lecture we will try to cover the common system of phenol and ether. Okay, now pause video and write all examples. Now see here, next one, next examples related to this one. Suppose I am writing here, next one, I am writing here CH3 CH2 CHBr CH2 CH2 CH2OH. Now here two functional groups are there. One is your halide and second one is your OH. According to preference rule, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहा तो प्रीफरेंस रूल के हिसाब से अपने को पेरेंट अल्केन सिलेक्ट करना पड़ता है. पेरेंट अल्केन, पेरेंट रूट नेम अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है और वो रूट नेम में पहला प्रेफरेंस जाएगा इसमें अल्कोहल को और बाद में तुम्हारा हाइलाइट्स आता है. सो नाउ दिस कार्बन बिकम कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. सो इट इज कॉल्ड एज 4 कार्बन पर Br है ब्रोमो, 4 ब्रोमो. ओके, नाउ 6 कार्बन मतलब हेक्सेन 1 all, 4 bromo hexane 1 all. So likewise you can write the IUPAC name of alcohol. Now next example, take the example of alkene. Suppose I have written CH3 CH double bond CH CH2 single bond OH. अब तक मैंने जो एग्जाम्पल देखा था all are the example of अल्केन, सब एग्जाम्पल अल्केन के थे. मैंने थोड़ा मेरा पैटर्न चेंज किया. नाउ हेयर वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन. क्या के एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन यहाँ पर? वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन. हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ दिस अल्कोहल. अब इसमें क्या करने का, एज यूजुअल आपका पेरेंट अल्केन सिलेक्ट करो. Now this one is my carbon number 1. Start numbering from that end where functional group appeared first. और दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है और एक डबल बॉन्ड है, लेकिन प्रेफरेंस रूल के हिसाब से नंबरिंग किसको दूंगा मैं? पहले OH को. मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा, जो रूट नेम आएगा वो रिलेटेड टू रूट नेम मतलब अल्केनॉल, वो रूट नेम अकॉर्डिंग टू OH आएगा. दिस कार्बन बिकम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4. This carbon become carbon number 4. Okay, now select parent alkane. 4 carbon atoms means it is butane. 4 carbon atom means it is butane. Then replaced ANE by ENE. जैसे आप लोगों ने अल्कीन का टॉपिक स्टडी किया है 11th में. मैं पहले पेरेंट अल्केन सिलेक्ट करूंगा, उसके लिए मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करूंगा. नाउ हियर 4 कार्बन एटम्स आर देयर मींस माय पेरेंट अल्केन इज ब्यूटेन. 4 कार्बन है इसलिए मेरा पेरेंट अल्केन क्या आएगा? ब्यूटेन. बट इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ अल्केन, it is the example of alkene. Then ANE is replaced by ENE. अब what is the position of double bond? Double bond आ रहा है between carbon number 2 and 3. While writing, write the lowest possible number. So this become but2ene. इसका IUPAC नेम क्या आएगा? but2ene. Then E of alkene is replaced by 1 and OL. So finally its IUPAC name is but2ene 1 all. What is its IUPAC name? but2ene 1 all. Okay, and its common name, अब CN का मतलब रहता है कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम आएगा क्रोटोनिल अल्कोहल. क्रोट का मतलब रहता है 4 कार्बन, क्रोटोनल, क्रोटोनल, क्रोटोन इस क्रोटेन, इसका मतलब रहता है 4 कार्बन. सो अपन क्या करते हैं? AN इज रिप्लेस्ड बाय YL. मैं अल्किल लूंगा ना, अल्केन नहीं लूंगा कॉमन सिस्टम में. CN मतलब कॉमन नेम. सो इट इज कॉल्ड एज क्रोटोनिल अल्कोहल. क्या नेम बोलूंगा इसका मैं? क्रोटोनिल अल्कोहल. नाउ दिस इज द IUPAC रूल. ओके, एंड दिस वन इज योर कॉमन नेम ऑफ but2ene 1 all. Hope you have understanding this concept.
So while writing IUPAC name of any organic compound, जब भी तुम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं तो पहले उसका रूट नेम चेक करो, पेरेंट अल्केन सिलेक्ट करो. इट इज कंसिडर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सब अल्केन से बने हुए रहते हैं. देन इन केस ऑफ अल्कोहल रिप्लेस E by OL. Pause your video and note down all this example. Pause your video. Then we will continue the name of cyclic alcohol. Pause your video. Okay. So this is all about the IUPAC nomenclature of alcohol, open chain structure. Now we will come to write the name of cyclic alcohol. अब देखो इधर मैं नेम लिखूंगा cyclic alcohol का. Hope you have written all this point. We will try to cover the name of cyclic alcohol. अब देखो cyclic alcohol का अपन नेम कैसा लिखते हैं. How to write the name of cyclic alcohol. मुझे cyclic alcohol का नेम लिखना है. पहले तो मैं आपको बता देता हूँ cyclic alcohol. Cyclic means it is the example of alicyclic alkane. अपन ने पढ़े हैं. Likewise, see this one. Now this one, this one, all are the cyclic हाइड्रोकार्बन. ये सब क्या है आप लोगों के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. ऑल आर द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. इसमें क्या करते हैं पता है, द प्रीफिक्स यूज इज साइक्लो, मतलब बिफोर पेरेंट अल्केन अपन क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, साइक्लो, क्योंकि वो साइक्लिक रहते हैं. फिर काउंट द डॉट 1 2 3. अब कितने डॉट्स हो गए, 3. 1 डॉट इंडिकेट्स 1 कार्बन, मतलब यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3. सो इट इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन. Yes, we will call it cyclopropane. Why cyclo? Because it is the example of alicyclic hydrocarbons. Why propane? This structure containing 3 carbon. Now both structures are same. That is here CH2, CH2, CH2 and CH2. ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारे, both structures are same. इसका नेम क्या आएगा, prefix use is cyclo. Okay, how many carbon atoms are there, 1 2 3 and 4. Now 4 carbon means it is the example of, काय का example हो गया ये, ब्यूटेन. So it is called as cyclobutane. इसमें कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 and 5. It is cyclopentane. Now here all are the single bond. सब क्या है तुम्हारे, सिंगल बॉन्ड. इट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन. अब मैं क्या करता, यहां पर सपोज OH अटैच करता हूं इधर. सी है क्या अटैच करता हूं इधर मैं, OH. नाउ OH मीन्स दिस बिकम द एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल. As usual, here E is replaced by OL. Definitely, what we will do here, E is replaced by OL. So it is called as cyclopropanol. Or in case of cyclic alcohol, the carbon to which OH is attached, that carbon will consider as a carbon number 1. साइक्लिक अल्कोहल के हिसाब से जो भी कार्बन को OH अटैच रहेगा, दैट कार्बन वी विल कंसिडर एज अ कार्बन नंबर 1. सो इट इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल. क्या बोलेंगे अपन इसको, साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल. नाउ सपोज दिस एग्जांपल, अटैच्ड हियर OH एंड CH3, अटैच्ड हियर OH एंड CH3. अब देखो, नाउ इट इज साइक्लोब्यूटेन. अकॉर्डिंग टू आवर रूल, जो कार्बन को OH अटैच रहेगा, दैट कार्बन वी विल कंसिडर एज अ कार्बन नंबर 1. दिस बिकम कार्बन नंबर 2 3 and 4. फर्स्ट राइट नाउ हियर CH3 एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. सो दिस बिकम 2-methyl. ये क्या हो जाएगा मेरा, 2-methyl. प्रीफिक्स इज साइक्लो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन. E is replaced by 1 and OL. So it is called as 2-methyl cyclobutane 1 all, butanol or cyclobutane 1 all. Likewise, you can write the name of this compound also.
राइट इट्स IUPAC नेम. अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? नाउ 5 कार्बन आइटम्स आर देयर, सो पेंटेन. E is replaced by OL. Prefix is cyclo. It is cyclopentanol. This CH3 act as a substituent. This is carbon number 1, 2, 3, 4 and 5. So it is called as 3-methyl cyclopentane 1-ol. क्या नेम हो जाएगा इसका? 3-methyl yes cyclopentane 1-ol. 3-methyl cyclopentane 1-ol. Likewise, write the name of this structure also. Instead of CH3, suppose here Cl is given to you. Yes, carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So it is called as 3-chloro cyclo. 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, और कार्बन नंबर 1 पर OH अटैच करो. राइट 1-ol या हेक्सेनॉल, दैट विल बी कंसिडरेबल. सो इट इज कॉल्ड एज 3-chlorocyclohexanol. So dear student, this is all about the nomenclature of alcohol. So in case of nomenclature of alcohol, we have studied 3 systems. One is your common system, carbinol system, and last one is your IUPAC nomenclature of alcohol with example of cyclic alcohol also we have discussed. So this is all about the nomenclature of alcohol. Now in next video lecture we will try to cover example of common IUPAC nomenclature of phenol and ether. Hope you have understood all this point. Thank you.